Hi and welcome to my channel. I won't say welcome back because this is the very first video I'm recording and uploading on my channel. So I am Neha and I'm also a student like you who is trying to help you all with the class 11th curriculum. Um, so if you're watching this video then I assume कि आपने recently class 10th pass की है. So many congratulations on that. And also assume कि आपने humanities के लिए opt किया है. So welcome to humanities. तो आज के इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट. क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में हैव टू मेजर बुक्स. वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड द अदर इज पॉलिटिकल थ्योरी. तो आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं. And in the upcoming videos on my channel, you will find videos of the chapters for Indian constitutional work and also the chapters of history and geography. I hope it's clear. Now, let me give you a brief that how am I going to explain this chapter to you. You will find some important points here. I will also mention the important examination questions and you will also find the notes of this chapter. One thing you might notice that is book may do not expect to find concrete descriptions or definitions of the concepts. You will majorly find questions. um, you will find questions like why and how this concept is important or how it affects us. So all the important things I will provide you as notes on the right hand side, like I have written all those things with the red pen. Yeah, that was all about briefing. Now let's start with the chapter. So first chapter, which is political theory and introduction. अगर मैं आपको समरी दूँ तो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड what is political theory, how it is important, and why we should study political theory. So now let's start with it. So the very first thing which is important is right here on the second page. Human beings are unique in two respects. They possess reasons and the ability to reflect on their actions. Now, you are a person and I am a person, right? आपके अपने वैल्यूज़ और आइडियाज़ हैं, मेरे अपने वैल्यूज़ और आइडियाज़ हैं, और हम इन्हीं आइडियाज़ और वैल्यूज़ और रीजंस को एक दूसरे के साथ लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. सो वी एज पीपल, वी एज ह्यूमन हैव रीजंस एंड आइडियाज़ एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस है. बट दूसरे जो एनिमल्स हैं या स्पीशीज़ हैं उनके पास ये दो जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है. एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट. And these two qualities, reasons and ideas, and the expressibility of us also acts as the root of political theory. Why? Because जब आप political theory पढ़ोगे इस क्लास में, you will realize कि political theory revolves around values and ideas. तो and how they affect us. तो अगर हमारे पास रीजंस और आइडियाज़ और उनकी एक्सप्रेसिबिलिटी नहीं होती तो आज पॉलिटिकल थ्योरी भी नहीं होती. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द टू रूट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, you will mention these two qualities. One is reasons and ideas and the second is expressibility. I hope it is clear. यहाँ पे जो है ये पूरे पैरा में this is the very same thing which is being conveyed. I have provided in the very crisp and concise manner. Now coming to the next point, which is the very first subheading, what is politics. Now इस वीडियो में अब तक 3 टर्म्स आ चुकी हैं. एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द अदर इज पॉलिटिक्स. ना बुक में तो इनका डेफिनेशन डेफिनेटली नहीं मिलेगा आपको या फिर डिफरेंस क्या है, बट आई बिलीव दैट एज एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड नो द डिफरेंस. तो I will explain the very simple manner. Political science is basically the subject. It basically focuses on the academic perspective and it includes the other two. यानी कि political science एक subject है जिसके अंदर political theory politics का हम study कर सकते हैं. Political theory is the study of values and ideas जो अब हम पढ़ रहे हैं in class 11th. और politics, जब आपने ये values और ideas को जान लिया, जब आप इन दोनों या फिर जो रीजंस हम जानेंगे उनका जब आप प्रैक्टिकली स्टडी करोगे या प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स. आई होप इट इज़ फाइन. नाउ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? कमिंग बैक टू द सब हेडिंग. पॉलिटिक्स
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो इसको देख के you must have got some thoughts inside you, right? Let me guess. First, definitely a politician. You know that topi and kala kurta pajama, and that of election, and also some negative thoughts about politics. यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे इस पेज में ये बताया गया है कि we as people who are definitely different and unique have very different opinion and idea about politics, but majorly we take it as negative, कि हमारा नेगेटिव व्यू पॉइंट है अबाउट पॉलिटिक्स. एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपका कोई फ्रेंड है, लेट्स से अमन इज़ योर फ्रेंड. अमन ने कुछ ऐसा किया जो उसके इंटरेस्ट में हो या जो उसके सेल्फिशनेस को लेके हो, तो यू कॉल हिम कि ये बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है. तो सेम वे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि पॉलिटिक्स इज रिलेटेड विद द नेगेटिव सेंस और डर्टी पॉलिटिक्स. बट इज इट ट्रू? क्या सच में पॉलिटिक्स ये रियली है? वी विल नो इन द अपकमिंग पार्ट. बट यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ कार्टून, एंड दिस कार्टून इज सपोर्टिंग दिस नेगेटिव व्यू ऑफ पॉलिटिक्स. यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है, उनकी वाइफ है और उनका एक बच्चा है. तो उनकी वाइफ उन पॉलिटिशियन से कह रही है कि तुम्हारे बेटे पे तुम्हारा बुरा असर पड़ रहा है, विच इज़ he is learning from you. He is taking the bad influence of cheating and lying from you. So this cartoon is supporting the negative viewpoint of politics. Now coming to the actual meaning of politics. Here, यहाँ पे ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, this is also about the very same thing, the negativeness of politics जो लोगों के ओपिनियन में है, बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है इफ यू स्टडी. तो दिस सेज कि पॉलिटिक्स इज मेनली कंसर्न विद टू मेजर थिंग्स. ओके, वन इज नेगोशिएशन एंड द अदर इज डिसीजन मेकिंग. नाउ वी एज अ सोसाइटी लिव, राइट, और हम सब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस एंड डिफरेंसेस हैं. अगर हम उन वैल्यूज़, रीजंस और ओपिनियंस को नेगोशिएट नहीं करें आपस में और एक कंक्लूजन या एक डिसीजन को फॉर्मुलेट नहीं करें साथ में, देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, राइट. द वेरी सेम थिंग इज टोल्ड हियर कि पॉलिटिक्स is not negative. It is mainly concerned with negotiation and decision making so that we can reach a collective decision. Collective decision which accommodates all the opinions. Right? So, अगर आपसे कोई पूछे कि politics क्या है, then politics is majorly concerned with negotiation and decision making to reach a collective decision which accommodates all the opinions of the people. Now, इसी के साथ यहाँ पे एक statement है which is really important and comes in the exam as an MCQ, यहाँ पे here. महात्मा गांधी जी ने एक statement दिया था that politics is like a snake which coils us. Snake which coils us. एग्जाम्पल, आपको शायद पॉलिटिक्स ना पसंद हो. यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज हु हैव द नेगेटिव व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड यू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. ठीक है, आप उनसे दूर रह सकते हो, बट पॉलिटिक्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अफेक्ट यू, बिकॉज जो हमने नीचे पढ़ा कि पॉलिटिक्स इज मेनली कंसर्न विद नेगोशिएशन एंड डिसीजन. तो जब भी आपकी सोसाइटी जिसमें आप रहते हो, चाहे वो आपकी कंट्री हो या सोसाइटी हो, जब भी वो एक नेगोशिएशन करे, एक डिसीजन बनाए कलेक्टिवली, तो वो डिसीजंस हमेशा आपको भी अफेक्ट करेंगे. एंड दैट इज़ वाई महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज अ स्नेक विच कॉइल्स अस. वो हमेशा आपके साथ रहेगा ही. तो अगर एक एमसीक्यू आए
कि किनका स्टेटमेंट था कि स्नेक पॉलिटिक्स इज लाइक अ स्नेक विच coils? द आंसर इज महात्मा गांधी. You can mark it down. Moving forward. Here. 1.2. What do we study in political theory? This is the very important one, I would say, because इस बुक में आप जो भी पढ़ोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इस बुक के इम्पोर्टेंस को समझोगे, या फिर यू विल हैव अ फाउंडेशन कि आप इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हो. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है इस पैरा में, इन द फॉलोइंग 3-4 पैराज. तो उसी पैरा को आई हैव समराइज्ड हियर इन 3 मेजर पॉइंट्स. यू कैन सी दिस इज मिसिंग समथिंग. ओके, सो अगर आप कलेक्टिवली समझना चाहो तो 3 मेजर चीज़ें ये फॉलोइंग पैराग्राफ्स कन्वे कर रही हैं. फर्स्ट इज स्टडी ऑफ वैल्यूज, justifies the significance of different systems, and debating on various ideas. Now, first one, which is study of values. क्या है values? Values, let's write it here. इस बुक में चैप्टर 1 को छोड़ के चैप्टर 2, 3 and 4 and so on till 8 आपको वेरियस वैल्यूज पढ़ने को मिलेंगी, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सो ऑन. तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम इन सब वैल्यूज का स्टडी करते हैं. ठीक है, आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड इज जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. सिस्टम्स मीन आपने ये सुना होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी विच इज़ हियर, पॉलिटिकल थ्योरी का अगर आप स्टडी करते हो तो यू कैन जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सच सेवरल सिस्टम्स, कि आखिर वो क्यों है, क्यों फॉर्म की गई है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट अस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिबेटिंग ऑन वेरियस आइडियाज लीडिंग टू द इवोल्यूशन. डिबेटिंग ऑन आइडियाज, सपोज इक्वालिटी का अगर हम देखें तो ये एक वैल्यू है. तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े तो हम इन सभी वैल्यूज़ के ऊपर डिबेट एंड डिस्कस करते हैं. एंड एज ऑलवेज डिबेट एंड डिस्कशंस ऑलवेज लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ सच वैल्यूज़. इवोल्यूशन एज इन सब वैल्यूज़ के अंदर या इनके साथ कुछ और स्टेटमेंट्स या कुछ और व्यू या फिर जो पार्ट्स हैं वो हमेशा ऐड होती रहती है. सो दैट वाज द थर्ड थिंग. सो अगर आप जानना चाहो यू कैन नोट इट डाउन दैट वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी बिकॉज वी कैन स्टडी सेवरल वैल्यूज. सेकेंड इज जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस एंड द थर्ड इज डिबेट्स लीडिंग टू एवोल्यूशन. नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस स्लाइड. यहाँ से MCQ आ सकते हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन. So here, Rousseau, you must have heard his name. Rousseau, Karl Marx and हमारे अपने गांधी जी. तो इनका इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये था कि किसने कौन से वैल्यू के लिए सपोर्ट किया था. तो रूजो ने फर्स्ट फ्रीडम के लिए किया था, एंड यहाँ पे दिया गया है हियर फ्रीडम. एंड कार्ल मार्क्स ने he asked for equality. राइट, MCQ में आ सकता है कि who was the one who asked for freedom or equality. You will have to take the correct answer as per the answer, like the very right answer. And same way यहाँ पे last line, Gandhian principles find a place in directive principles. DPSP जो है हम सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे DPSP के बारे में इन डिटेल. बट आप यहाँ पे समझ लो कि MCQ में आता है कि Gandhian principles find their place where, तो उसका आंसर है DPSP. प्लीज मार्क इट डाउन. ओके, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ इन द 3 पॉइंटर्स जो मैंने आपको ऊपर समझाए थे. नाउ यहाँ पे आता है सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इज ऑल दिस रिलेवेंट फॉर अस नाउ? जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमने जो देखा वैल्यूज़ हो, सिग्निफिकेंस ऑफ जो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर जो डिबेट एंड डिस्कशन है लीडिंग टू द एवोल्यूशन, क्या वो रिलेवेंट है, क्या वो नेसेसरी है आज भी? तो उसका आंसर भी मैंने आपको 3 पॉइंटर्स में दिया है, और यही पूरा आंसर, यही 3 पॉइंटर्स को इन लोगों ने PDF में एक पूरे पैराग्राफ में या 3-4 पैराग्राफ में बोला हुआ है.
So I will explain you one by one. First is real versus real. Now I know this is not a very appropriate term, but this is the very simplest way I can make you understand. तो आपने देखा होगा इन शॉर्ट्स एंड रील्स में कि रील वर्सेस रियल जो एक होता है, तो रील है जो आप देखना चाहते हो, विच you imagine, but real is what you actually have, which you can actually live in. तो रील में आई विल गिव एग्जाम्पल, इकोनॉमिक इक्वालिटी. ओके, economic equality. So this is one of the thing which political theory studies as a part. तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट किया जाता है कि हर लोगों को सेम वेजेस मिले, एवरीबडी शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ये एक रियल व्यू है. दिस इज़ द रियल व्यू कि ये होना चाहिए. दिस इज़ द यूटोपिक व्यू. बट इन रियलिटी क्या ये है? Obviously not, right? There are economic disparities, people are suffering from poverty and what not. तो ये relevant definitely है, because political theory के study के help से we can change this real view to the real view in the world, right? Okay. Second is new interpretations. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइट टू प्रॉपर्टी. तो क्या हुआ था, सेकंड के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे. सो यू हैव नोन अबाउट फंडामेंटल राइट्स, राइट? कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स. ये भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे ऑफ द सेकेंड बुक. बट पहले ये 7 हुआ करते थे बिकॉज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी. बट क्या हुआ, 1973 में एक केस हुआ था जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था. क्यों? क्योंकि उस टाइम इसका जो फंडामेंटल राइट का जो है राइट टू प्रॉपर्टी का, उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया था. तो इसी कारण राइट टू प्रॉपर्टी को एक ऑर्डिनरी लॉ बना दिया गया था फ्रॉम रिमूविंग इट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट. तो इसका डिटेल स्टडी हम चैप्टर 2 में करेंगे. वहाँ पे आई विल मेक एक्सप्लेन कैसे क्या हुआ था. बट यहाँ तक आप समझ लो कि इंटरप्रिटेशन का ये एग्जाम्पल हो सकता है. एंड थर्ड इज़ द एवोल्यूशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था. तो इसका एग्जाम्पल है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. या फिर आप देख लो, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. तो इंटरनेट, राइट? इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है आजकल, राइट? सो जब हमारी सिचुएशन चेंज हो रही है ना, 20 साल पहले जो था वो आज नहीं है. और सेम वे इंटरनेट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर अस. और उसी नेसेसिटी के साथ साथ उसी राइट के लिए उसे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. तो फॉलोइंग दिस वी हैव right to privacy, right to privacy and right to information, है ना? तो all these rights पहले नहीं थे, but with the change in the society and with the change of our needs, these rights are also coming into the play and helping us with the evolution. Fine. So these were the 3 major पॉइंटर्स विच हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो आज कैसे रिलेवेंट है. तो आप इन 3 की वर्ड से याद रख सकते हो ईजिली. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. तो यहाँ पे जो मैंने बोला वही थर्डली वाला पैराग्राफ, थर्ड पॉइंटर का ये पूरा है, बट इन द वेरी क्रिस्प मैनर प्रोवाइडेड. सो इस ब्लू बॉक्स में नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स जस्ट कट आउट भी नहीं, लाइक अ पार्ट ऑफ अ बुक विच इज़ डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, वो है ये द रिपब्लिक. सो दिस बुक वॉज रिटन बाय प्लेटो. तो आपको बस ये याद रखना है बिकॉज ये MCQ में ज़रूर आएगा. तो जस्ट रिमेंबर कि प्लेटो रोट द बुक रिपब्लिक, द रिपब्लिक. ओके. पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस. दैट वाज अ बैड लाइन. आई विल ड्रॉ इट अगेन. पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस. सो इसमें इस पार्ट में मेजरली कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू इन द वेरी सिंपलेस्ट मैनर. तो जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो वैल्यूज़ थे जो मैंने मेंशन किए, सेम लाइक इक्वालिटी या फिर फ्रीडम या सोशल जस्टिस के बारे में जब आपने पढ़ लिया हो, तो जब आप उसे इन प्रैक्टिस में लाते हो तो उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं आपको इक्वालिटी के साथ दूंगी. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 3 लोग हैं, फाइन, 3 पीपल आर देयर.
just draw their hands nicely. Yeah, okay. So तीन लोग हैं हमारे पास. One belongs from a very rich family, one belongs from a middle class family, and the other is from a poor family. तो इक्वालिटी अगर आप देखो तो इट टेल्स कि सबको सबको सेम अपॉर्चुनिटीज एंड सेम प्रोविजंस मिलने चाहिए, नो मैटर फ्रॉम वेयर दे बिलोंग. तो यहाँ पे इन तीनों लोगों को सेम प्रोविजंस मिलेंगी, यानी कि सेम एज इट इज़. जितना इसको मिल रहा है उतना ही इसको भी मिलेगा, उतना ही इसको भी मिलेगा. बट इक्वालिटी के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ इक्विटी. इक्विटी टेल्स दैट लोगों को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोवाइड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड्स, विच मीन्स ये इंसान रिच क्लास से है और ये पुअर फैमिली से है, तो इसकी नीड्स इससे ज़्यादा होगी, राइट? तो इस इंसान को हम ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे कंपेयर टू दिस पर्सन. सो दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी. तो सेम वे इन सब चीज़ों में भी, फ्रीडम में भी अगर आप देखो, फ्रीडम हियर, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इन सब में भी इक्विटी की तरह, जैसे इक्विटी इज़ अनदर व्यू पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, इनके भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं. तो इन्हीं चीज़ों को हम तभी जानेंगे जब पॉलिटिकल थ्योरी को हम प्रैक्टिस में लाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड सब हेडिंग. आप ये ब्लू बॉक्स इज लाइक यूजलेस, ये आप छोड़ ही सकते हो एक्सेप्ट द वेरी फर्स्ट MCQ. जो मैंने आपको समझाया वो सब यहीं पे दिया गया है, यू कैन रीड इट वंस. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स कैसे क्या होता है. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ सब हेडिंग हियर. वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? अगेन यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन की गई हैं बुक में. उनको मैंने एकदम क्रिस्प कीवर्ड्स में प्रोवाइड किया है ताकि आपको याद रखने के लिए हेल्प करे. फर्स्ट इज relevancy, second is updated citizen, third is effectiveness of the value, and exposes us to thinking. Now relevancy, I will explain to you one by one. First is relevancy. See, this is very similar to what I told you in the example of snake वाला example, snake coiling वाला example जो था उसमें ये similar था. तो relevancy क्या है कि आप as a person इस society एक part हो. आप बड़े हो के आप कहीं पे भी काम करो, चाहे वो बाहर हो, इंडिया में हो या कहीं भी हो. पॉलिटिकल थ्योरी के जो आइडियाज़ हैं, फ्रीडम या इक्वालिटी, अगेन दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू. तो ये आइडियाज़ हमेशा कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगे. आप कहीं पे भी चले जाओ, दिस विल ऑलवेज अफेक्ट यू एंड योर लाइफ. सेकेंड इज़ अपडेटेड सिटीजन. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं राइट्स का. राइट्स में भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही पढ़ने को मिलता है. तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू अपने राइट्स के बारे में जानोगे, यू विल बिकम अवेयर ऑफ योर राइट्स. और जब आपके राइट्स को कोई वायलेट करे, देन यू कैन टेक सर्टेन एक्शंस टू रीइंफोर्स योर राइट्स. तो विदाउट द स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी आप शायद अपने राइट्स के बारे में जागरूक हो ही ना. एंड दैट इज़ वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, एंड इट वॉज द सेकेंड रीज़न फॉर दैट. थर्ड इज दीज वैल्यूज अफेक्ट्स अस. ये भी फर्स्ट की तरह सेम है, बट इसमें ये कहा गया है कि ये जो आइडियाज़ हैं इक्वालिटी या फिर फ्रीडम के, दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट. ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. दीज विल ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन योर लाइफ. एंड द लास्ट इज एक्सपोजेस अस टू थिंकिंग. जितना ज़्यादा आप इन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप इनके बारे में सोचोगे. यू विल थिंक अबाउट इट, एंड थिंकिंग से ही क्या होगा, इनकी दूसरी जो एरियाज़ हैं या जो पार्ट्स हैं वो भी आपके सामने आएंगी. दे विल कम टू द प्ले एंड विल हेल्प यू डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है. तो these values help you to think more and make a better decision. So these were all 4 points regarding why should we study political theory. First was relevancy, second was updated citizen, third was कैसे ये values abstract नहीं है और आपको हमेशा आपकी life को affect करेगी, and fourth is they exposes you to thinking and to take a better decision.
अगर आप इस पेजेस में पढ़ोगे, इन सब पॉइंटर्स में, सॉरी पैराग्राफ्स में, तो आपको यही 4 बातें इन्होंने बताई हैं here till here. And with this, we have reached the end of our chapter. Here are the exercises. Please do it because this will be a very good thing to do after you have completely understood the concept and all the things which this chapter wanted to convey. If you have any doubts, you can mention in the comment section and I will be happy to reply to all those doubts. And yeah, this was all for today and wishing you all the best and see you next Wednesday. Take care.